Hi guys, hope all you are doing well. My name is Kiran Raju Khade. I have secured All India rank 41 in CAPF 2019 examination. Some of my batchmates and my juniors were asking me to conduct a session on how to approach CAPF exams, and specifically Kiran and Swapnil sir were forced me to conduct a session, and finally I am here. So in this session, we'll see how to approach paper first, paper second, some physical also, how to what should be the points to be considered while going for physical, and little bit about interview. But if you guys require, then let me know. I will make a brief video on interview also. So let us start. So paper first, in for throughout the this preparation, I have divided students into two parts. Like first, those who are preparing for civil services and those who are not preparing for it, or who are preparing exclusively for CAPP examinations. Those who are not preparing for civil services, there is no need to worry. I have separated some points which you have to keep in mind. So let us start. So paper first, you know that paper first is GS part, and in addition to it, some science and tech questions is there, some current affairs, and some mathematics. So first, those who are preparing for civil services, you guys don't have to give too much time, because for example, in 2019 examination through which I have selected, so I didn't spend too much time on reading the history, polity, geography and all this stuff, because we already studied a lot of things. So just we have to just brush up some things. I will tell you. For example, in history, we read spectrum for modern India. So before the CAPP examination, just go through it, or revise the last part, like that Congress sessions, then the governor generals, newspapers, tribal movements, peasant movements, all these things. Just brush up it. Then medieval and ancient and medieval, Tamil Nadu State Board, just revise it once, very fastly, quickly, within 1 day or half day. Art and culture, Singhania, that we used to read all the people. So just we have to revise it. And for non civil servant aspirants, so since you are preparing for CAPP examination, you have to read this book thoroughly, and you have to understand the things properly, and you have to mark some things like which I have told, like Congress sessions, governor generals, and go to the past year question papers and study according to that questions. Like for example, they are asking the governor generals, then you have to mark up it. Then similar questions. Polity, Lakshmikant. For those students, Lakshmikant is the best. And for civil servant aspirant, revise it once before going to exam, or at least those part which you lack. For geography, 6 to 12th NCERT is sufficient, and but along with it, you have to use map, and continuously have to see the things in the map. For example, जब एक दलाई लामा ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक प्लेस को विजिट किया था, तो 17 या 18 में CAPF ने वहाँ पे एक पास है वहाँ पे, तो वो पास पूछी थी एक्चुअली. तो अगर कोई ऐसे करंट रिलेटेड होता है, तो हमने मैप में लोकेट करना है उसको. सिमिलरली सिक्योरिटी रिलेटेड जो थिंग्स होती है ना, तो उसको मैप में जाके देखना है. फॉर एग्जाम्पल गलवान वैली इशू, तो वहाँ पे एक 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से जा रहे हैं गलवान रिवर, वो वैली कहाँ है, कहाँ जाके मिलती है, ये सब चीज़ें, ग्लेशियर कौन सा है, किस साइड है, ये सब. और सिविल में भी क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर. देन सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक्स, बेसिक बुक कौन सा भी एक रेफर करो, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू गो थ्रू द मुन्नास नोट्स, because it is a good note. I have used it. So next, environment, Shankar Eyes, all the people read it. But for CAPP examination, Shankar Eyes is not that much productive, or cost benefit ratio is less as compared to civil services, because for civil services the exam is for two posts, like फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड हमारा IAS. तो इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पे. बट
in this CAPP exam this is not the case, so you have to just not focus a lot of things in this, just go through it once. So this general study part, it's almost everybody study, but मुझे आपसे ना यहाँ पे एक्चुअली चीज़ें बतानी है, लाइक दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यहाँ पे चीज़ें मिस होती है और यहाँ पे हमारा स्कोर कम आता है। तो स्कोर कम आ गए तो फिर कुछ मतलब सिलेक्शन उसके कुछ फ़ायदा नहीं है, लाइक क्वालिफाई करके हमें अच्छा रैंक लाना है ताकि अच्छा सर्विस मिले। तो फर्स्ट साइंस एंड टेक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप दिस पार्ट बिकॉज हमें सिविल सर्विस के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और वो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेसन करूँगा कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन जो सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट है उनको एक कौन सा भी एक बुक जो बेसिक बुक है जैसे कि लूसेंट का है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं हो लेकिन सुना है मैंने, तो वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज तुम 8, 9 एंड 8, 9, 10 के NCERT अच्छे से पढ़ सकते हो, और 12 का बायोलॉजी का NCERT, 11, 12 का दोनों भी बायोलॉजी के बस, नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इतना अगर तुमने कर लिया ना तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स में हम तो पढ़ते नहीं क्योंकि अवार्ड वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती है उसमें। कुछ जो लोग एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर कर रहे हैं उनका अच्छा होता है, लेकिन हमारा कभी मेंस होता है, जैसे मेरा मेंस था तो मैं कर नहीं पाया थे। एक्चुअली मैंने क्या किया था, कुछ जूनियर्स का बताया था कि तुम ऐसा ऐसा करो करंट अफेयर्स, जो मैं तुम्हें बताने चाह रहा हूँ, तो उन्होंने जो किया था मैंने वही पढ़ा था बस। लाइक करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के सब फास्ट ऑलमोस्ट 2015 के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उठाने उसके बाद के, और उसमें जो भी अवार्ड्स पूछे गए आज तक वो बस तुम्हें साइड को लिख के लेने हैं। जो अवार्ड्स, पर्सनैलिटीज, किस टाइप का, अलग खेल के कुछ पूछे जाते हैं सब, तो वो लिख के लेना साइड को, और उस अवार्ड का एकदम थरली जाके देखना है कि कौन देता है, कब देता है, क्यों देता है, और इस साल वो अवार्ड किसको मिला है, ये एक देखना है तुम्हें बस। ओके, और मुझे लग रहा है यही बस सफिशेंट है, क्योंकि इससे मोर देन 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं तुम्हारे, लाइक मेरे भी हो गए थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही करो, क्योंकि हम वो पूरा बुकलेट नहीं पढ़ सकते जो कि पूरे अवार्ड है, सब कुछ दिया है उसमें, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका बहुत कम है हमारे लिए। अभी नेक्स्ट आते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ का जो पार्ट है ना, लाइक मेरा तो मैथ थोड़ा वीक है, फिर भी मैंने रिस्क लिया था, मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था इसके ऊपर। और मैं तो मतलब ऐसा बोलूँगा कि तुम सब लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होते हैं, और मैं सॉल्व कर पाया तो मुझे लग रहा है कि सब कर पाएंगे, क्योंकि मैं वीक हूँ इसमें। तो इसके लिए भी क्या करना है, पिछले ईयर्स के सब क्वेश्चन पेपर उठाने हैं 2015 के बाद के, एंड गो थ्रू इट एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। मतलब जो जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ना आज तक उसको सॉल्व करो, और अगर नहीं आ रहे तो किसी से समझा के लो, और उसी टाइप के अलग 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करो। लाइक फॉर एग्जांपल बेसिक न्यूमरी से भी कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल इसका एज इतना है, इसका एज इतना है तो कितना हो जाएगा, या 10 साल बाद, ये सब चीज़ें होती है ना, तो उसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, तो इससे तुम्हारा मैथ हो जाएगा, और ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है इसका, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करके भी तुम्हें अच्छा स्कोर मिल जाएगा, क्योंकि हमें जीएस में तो मार्क्स अच्छे लाने ही हैं, वहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ साइंस एंड टेक, करंट और मैथ, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हुए भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने किया है 2 बार, 18 में भी और 19 में भी, और 20 में भी किया है मैंने। 20 में भी अच्छे खासे मेरा स्कोर आया था। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर का ये हो गया। देखो अभी मैं ये जो है स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें ब्रीफली बताया है, जिसको भी कोई डाउट होगा मुझे तुम एक तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। अदरवाइज तुम मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक का आईडी है किरण तुलसा राजू खाड़े नाम से है, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी किरण खाड़े 12 ऐसा है। तो उसके ऊपर तुम मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कुछ भी CAPP रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर इट विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम। सो हम सेकेंड पेपर पे चलते हैं, क्योंकि ब्रीफली बताना है बस। सेकेंड पेपर पे आते हैं। सेकेंड पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ पे जाके टाइम मैनेजमेंट करना। अभी उसके लिए क्या चीज़ है, एग्ज़ाम को जाने से पहले तुम्हें एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन पेपर मतलब मॉक देने हैं पेपर सेकंड के। क्यों? क्योंकि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग, क्योंकि हमें इसका टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे 4 लिखने होते हैं, हम यहाँ पे एक 2 ही ऐसे लिखते हैं 1200 वर्ड्स के, लेकिन वहाँ पे 4 ऐसे लिखने होते हैं कम वर्ड्स में।
तो उसके लिए टाइम नहीं, मतलब हम मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए 3 to 4 मॉक दे दो, कहीं के भी मार्केट से उठा लो मॉक और दे सकते हो। MSc हब के भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। तो उसमें ऐसे है 4 ऐसे पूछे जाते हैं, सॉरी 6 होते हैं टॉपिक्स, लेकिन हमें 4 लिखने होते हैं। प्रिसाइज 1 प्रिसाइज वी हैव टू राइट, 2 आर्गूमेंट्स एंड 2 रिपोर्ट्स। और आई वुड लाइक टू टेल दैट आवर सीक्वेंस ऑफ राइटिंग शुड बी फिक्स्ड। लाइक मेरा सीक्वेंस ये था, पहले मैं मतलब लिखते टाइम पहले मैं प्रिसाइज लिखता था, क्योंकि हमें वहाँ पे थॉट देना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, उसके ऊपर अच्छे से एक ये बनाना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं। तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर लास्ट में लिखा तो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेशर में माइंड नहीं दे सकते। तो यहीं पे जाते जाते प्रिसाइज लिखता था मैं, मतलब मैं लिखा था। उसके बाद मैंने आर्गूमेंट्स लिखे थे, क्योंकि फास्ट में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लिखने होते हैं और एक कंक्लूजन देना होता है। तो ये आर्गूमेंट लिखना है, और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स लिखने हैं। मैंने लिखे थे रिपोर्ट्स, तुम भी ये कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वे है। रिपोर्ट्स का मतलब ये कहाँ से करना है मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। रिपोर्ट्स लिखने दो, और फिर उसके बाद ऐसे लिखने, क्योंकि क्या है ना कि हम 3 ऐसे का क्वालिटी मेंटेन कर रख सकते हैं, और लास्ट का ऐसे हम ऐसे वैसे मतलब लिख सकते हैं। ओके, तो अभी इसका कैसे देखना है, कहाँ से करना है तुम्हें। तो प्रिसाइज का है ना, क्या करना है प्रिसाइज का, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे बस डालो कि प्रिसाइज राइटिंग फॉर CAPF एग्जाम, तो बहुत सारे तुम्हें लिंक मिलेंगे, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो वो लिंक्स तुम्हें जाकर वहाँ पे वीडियोस देखने हैं, 2-4 वीडियोस, और उसमें से एक कौन सा भी एक स्ट्रक्चर उठा के उसी के स्टिकअप रह के तुम्हें लिखना है उसके ऊपर। डोंट गो हेयर एंड देयर, जस्ट फॉलो वन। सिमिलरली आर्गूमेंट का भी वैसा ही है, तुम्हें वहाँ यूट्यूब पे सर्च करना है चीज़ें, और वहाँ पे देखना है रिपोर्ट्स पे। मैंने तो यही किया था, और मतलब मेरा उसी की वजह से रैंक आया, तो मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, तुम भी ये कर सकते हैं और अच्छा रैंक आ सकता है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, और उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। लाइक दोज हु हैव लर्न इन कॉन्वेंट और दोज हु हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश, दोज पीपल फेस गुड मार्क्स, बट मेरा ये नहीं था। तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था ये पार्ट, लेकिन मैंने क्या किया था, वही मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाए थे। मेरा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मतलब मेरा बहुत फोकस रहा था, और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गुड रैंक मतलब ठीक रैंक आने का वही एक गुड वे था। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने तुम्हें प्रीवियस ईयर के, और वीडियोस देखने उसकी यूट्यूब पे जाके। एक मैम की वीडियो है, अच्छा वीडियो है, तो उसकी वो वीडियोस देख सकते हो तुम। और अगर तुम्हें किसी को अगर डिटेल में प्रिपरेशन करना है, टाइम है जिसके पास, वो क्या कर सकते हैं, कुछ इंग्लिश का एक बुक उठा लो, कोई भी जो है मार्केट में चलते हैं उसका, और जो टॉपिक पूछे, जैसे क्वेश्चन टैग है, पैसिव का एक्टिव करना है, एक्टिव का पैसिवाइज करना है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसके ऊपर बस वो टॉपिक अच्छे से करो जितने भी पूछे जाते हैं। और कुछ अपोजिट वर्ड्स है या सिनोनिम्स है, तो वो भी करना है तुम्हें, अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो वो करो। और मैंने तो ये किया था कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी पूछा था बस उतना ही यूट्यूब पे देखा, बार बार 2-3 बार वीडियोस देखे थे, और उसी से मेरा काम चल गया था इससे। अभी चलो अभी फिजिकल के ऊपर जाते हैं। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, इसके रिलेटेड मैं आंसर कर दूंगा वहाँ पे। फिजिकल का क्या है, अभी तुम अपने खुद को ना एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालो। लाइक मैं हूँ, मुझे कोई फिजिकल का इतना इशू नहीं, मैं अभी ऐसे भी जाता हूँ। अभी मेरा 2020 में भी सिलेक्शन हुआ था, तो मैं एक दिन में कर सकता हूँ, ये गया तो सीधा कर सकता हूँ सब चारों के चारों इवेंट। तो तुम्हें कैटेगरी में कौन से हो तुम, जैसे कि कुछ लोगों को, मैं हो गया, मेरे जैसे लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें 10-15 दिन प्रैक्टिस करनी है और इंजूर नहीं होना है। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा तुम्हें, जस्ट तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि कोई स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं ना तुम में। स्ट्रक्चरल इशू मतलब फॉर एग्जाम्पल नॉक नहीं होता है किसी को, नॉक नहीं, तो हम उसको दुरुस्त मतलब कर सकते हैं उसको, लाइक बीच में तकिया रख के कर सकते हैं कोई, अगर ज़्यादा नहीं है तो नॉक नहीं है ना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ये है तो मुझे लगता है कि वहाँ से तुम आउट हो जाओगे, वहाँ पे कोई तुम्हें एक्सक्यूज नहीं मिलने वाला है कलर ब्लाइंडनेस में स्पेसिफिकली। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देना है तुम्हें, फिजिकल को अपेयर होना ही है, क्योंकि बाद में पता नहीं अगर ऐसा कुछ रूल आ जाए तो चेंज हो सकता है, तो एग्ज़ाम देना है तुम्हें। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए, वहाँ जाके पैनिक नहीं होना। तो मेरे जैसे एक बंदा हुआ, हम 3 टाइप के लोग हैं। मेरे जैसे होते हैं जो इसके प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिर भी 10-15 दिन प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। दूसरा है
जिसको वेट बढ़ाना होता है, सॉरी वेट कम करना होता है। लाइक मेरा एक फ्रेंड था, उसने 93 वेट था, तो 30 kg कम करना था उसको। लाइक 30 kg वेट कम करना कोई खाने मतलब जोक नहीं है भाई। तो अगर वैसा है तो तुम्हें अच्छी तरह से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से तुम्हें काम पे लगना पड़ेगा। और नहीं तो फिर तुम्हें रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल मिलेगा ना तो इधर उधर का प्रीलिम्स होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है, बहुत झंझट होती है दिमाग को। तो रीमेडिकल मत ले लो, पहले ही गो में अच्छे से तुम उसको प्रिपेयर करो और तुम्हारा वेट कम करो। सॉरी। और कुछ लोग होते लेजी होते, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता है, लेकिन वो लॉन्ग जंप नहीं कर पाते, दौड़ नहीं पाते, उनका स्टैमिना नहीं होता है। तो उनके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ओके, अभी एग्ज़ाम पे टाइम पे है ना, फिजिकल के एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा ना मतलब एक्साइट नहीं होना है। लाइक जो हम शॉर्ट पुट डालते हैं ना, मेरा एक फ्रेंड था, तो वो बोले क्योंकि एक ही चांस होता है, तो वो बोले हाँ आ जाओ कोई। तो उन्होंने अच्छी तरह से रूल भी बताए थे कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना, दिक्कत से राउंड होता है, उससे ढाल के ना इस साइड को जाना होता है, आगे नहीं, साइड को नहीं, इधर भी नहीं जाना होता है। तो उन्होंने क्या किया, सब अच्छी तरह से बताया और बोला आ जाओ कोई भी वॉलंटियर, और शुरू करते। और वो गया, वो सीधा डाल दिया, सीधा आगे डिस्क्वालीफाई। हम सब ने रिक्वेस्ट की बहुत, लेकिन उनको नहीं लिया अंदर वो बंदे को। वो बहुत बुरा लगा कि बता मतलब अभी बताया था और अभी उसने गलती की इतनी बड़ी। उसके लाइफ का मतलब इतना बड़ा डिसीजन बस एक छोटी सी इतनी सी सिली मिस्टेक से हो गया। तो ये नहीं करना बिल्कुल भी, रिग्रेट हो जाएगा फिर बाद में, तो वो ध्यान देना है। और दौड़ते टाइम पे भी थोड़ा ठीक से, लाइक मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं थोड़ा एक्साइट हो गया था 100 मीटर के लिए, तो मुझे पता था मैं बहुत फास्ट रन करूँगा। तो सामने एक वॉल थी, मैं इतना फास्ट से दौड़ गया ना, तो सामने जाके सीधा वॉल पे गया था मैं। तो मेरे पैर मारा था ऐसा, अगर पैर मुड़ जाता ना तो मेरा मतलब परमानेंटली मेरा बेंड हो जाता पैर, मतलब लाइक फ्रैक्चर। तो ऐसा मतलब एक्साइट नहीं होना है, तो थोड़ा ठीक से करना है वहाँ पे, क्योंकि एक बार तुम अगर वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया ना, तो रीमेडिकल भी दिया तो नहीं होने वाला है तुम्हारा ठीक से। तो जस्ट थोड़ा अच्छे से उसको ध्यान में रखना है। तो हाँ, यही बस पेपर सेकंड। और इंटरव्यू के लिए ना डैप अच्छे से प्रिपेयर करो, डैप में हर चीज़ अच्छे से भरना है, तुम्हारा जो भी बैकग्राउंड है। और ज़्यादा ओवर फ्लो मत मतलब ज़्यादा मत भरो कुछ भी, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसके ऊपर मैं एक इंटरव्यू के लिए या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मैं तुम्हें अच्छे से एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर तुम्हें चाहिए तो। अभी ओवरऑल क्या है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे सब कुछ है CPP एग्जाम के लिए, बहुत स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए ना, ये अच्छा मतलब रैंक लाने के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं किया ना, तुम कितने भी अच्छा पढ़े हो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव टॉपिक है जो हमें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिल सकते हैं, और उसके ऊपर हम कम टाइम देकर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डे पे भी तुम्हें वो सब चीज़ें तो मतलब सबको पता होती है कि लाइक थोड़ा काम रहना है, ये वो सब चीज़ों को लिस्ट बना के जाना है, वो सब मैं नहीं बताऊँगा उसको। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि पेपर फर्स्ट में ना तुम्हें 110 के आगे ही तुम्हें सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि देखो तुमने 100 सॉल्व किया ना, तो स्कोर कम आ जाता है पेपर फर्स्ट का, और तुम क्वालिफाई हो गए ना, तो तुम्हारा बिना मतलब का टाइम जाता है। लाइक उसमें बस एक पॉजिटिव, लाइक फॉर एग्जांपल तुमने अगर क्वालिफाई कर लिया तो तुम फिजिकल करोगे, उसमें टाइम चला जाएगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो इंटरव्यू दे दोगे और तुम्हारा रैंक अच्छा नहीं आया, सिलेक्शन नहीं होगा या रैंक बहुत कम आएगा। अगर रैंक कम आ गया तो तुम अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, सो इट विल बी वेस्ट, बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट यू कांट गिव, देर इज़ अ रूल दैट यू कैन नॉट गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट इफ यू आर सेलेक्टेड इन प्रीवियस अटेम्प्ट। ओके, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है, अगर तुम इंटरव्यू देकर क्वालिफाई नहीं हुए, तो जैसे मेरा 18 में हुआ था, मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ था, उसका एक एक्सपीरियंस आता है तुम्हें इंटरव्यू का, यूपीसी का। तो अटेम्प्ट ज़्यादा करना, 110+, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, तो मैंने किया था ऐसा। और क्लास 1 गैजेटेड पोस्ट है, सीरियसली लेना है इसको, क्योंकि मेरा बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ था ये, जब मैं सिलेक्शन हुआ था तो मैं इधर भी अच्छा पढ़ाई करने लगा हूँ, माइंड बहुत स्टेबल हो जाता है। ऐसा मत समझना कि ये वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छा है, और तुम्हें यूपीसी का एक अच्छा इंटरव्यू देने को मिलता है, लाइक ये बहुत बड़ा बात है उसमें, सो गिव इट सीरियसली। दैट्स इट, मुझे तो यही कहना था। फिर भी अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे ज़रूर तुम कमेंट बॉक्स में बता देना, या फेसबुक या इंस्टा पे बता देना, मैं 100% तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा।
और अभी तो टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, लेकिन फिर भी प्रिपेयर करना। प्रीलिम्स सिविल का भी आगे जा सकता है, पता नहीं। अगर टाइम मिल रहा है तुम्हें तो इसके ऊपर तुम थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हो अगर प्रीलिम्स आगे जाता है सिविल का तो। और फिर बाद में जब नोटिफिकेशन आते हैं 10-15 दिन बचते तो इसका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो तुम CVPIP का। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। और कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना, आई विल श्योरली आंसर इट। थैंक यू सो मच।